नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्रिजी डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसके इंग्लिश के वर्ड को हम ध्यान से सुनते हैं कि हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। चित्ता asserts from uncommon wisdom, the knowing essence of mind, the one who knows is the only stable reality. The knower occupies a neutral position between dualities like happiness and suffering. One simply knows them. The Pali word chitta, often used when referring to the one who knows. Chitta is completely unlimited because it encompasses everything. You can know the chitta, but you cannot see it. It is not a sensory thing that you can contact. You cannot perceive the knowing essence because the knower and the knowing are same. For the chitta to perceive itself, it would have to split into two, and it cannot do that. One level there is chitta of ordinary life. This chitta is rather like the movement of the waves on the surface of the ocean, in contrast to the still depth below. The superficial chitta is always grounded in something we call the original chitta or the primordial chitta. This is something vast and unfathomable, like the depth and the breadth of the ocean. आइए दोस्तों फिर इसको दोबारा ध्यान से सुनते हैं। चित्ता aside from uncommon wisdom. The knowing essence of mind, the one who knows, is the only stable reality. The knower occupies a neutral position between dualities like happiness and suffering. One simply knows them. The Pali word chitta is often used when referring to the one who knows. Chitta is completely unlimited because it encompasses everything. You can know the chitta, but you cannot see it. It is not a sensory thing that you can contact. You cannot perceive the knowing essence because the knower and the knowing are the same. For the chitta to perceive itself, it would have to split into two, and it cannot do that. On one level, there is chitta of ordinary life. This chitta is rather like the movement of the waves on the surface of the ocean, in contrast to the still depths below. The superficial chitta is always grounded in something we call the original chitta or primordial chitta. This is something vast and unfathomable, like the depth and breadth of the ocean. आइए दोस्तों, हम इसके हिंदी के अर्थ को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। चित्त असामान्य ज्ञान से कुछ अंश, मन को जानने वाला सार, वह जो जानता है एकमात्र स्थिर वास्तविकता है। ज्ञाता सुख और दुख जैसे द्वंद्वों के बीच एक तटस्थ स्थिति रखता है। कोई उन्हें बस जानता है। पाली शब्द चित्त का प्रयोग अक्सर वह जो जानता है के संदर्भ में किया जाता है। चित्त पूरी तरह से असीमित है क्योंकि यह सब कुछ समाहित करता है। आप चित्त को जान सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। यह कोई ग्रहणशील या संवेदी चीज नहीं है जिसे आप संपर्क कर सके। और ज्ञाता और जनता दोनों एक ही हैं। चित्त को स्वयं को समझने के लिए उसे दो भागों में विभाजित होना होगा और वो ऐसा नहीं कर सकता। एक स्तर पर सामान्य जीवन का चित्त है। यह चित्त नीचे की शांत गहराई के विपरीत समुद्र की सतह पर लहरों की गति जैसा है। सतही चित्त हमेशा किसी ऐसी चीज पर आधारित होता है जिसे हम मूल चित्त या आदिम चित्त कहते हैं। यह समुद्र की गहराई और चौड़ाई की तरह विशाल और अथाह चीज है। आइए दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा दोबारा विस्तार रूप में थोड़ा समझते हैं। चित्त, इस शब्द को हम अच्छी तरह जानते हैं। मन को जानने वाला वो सार जो जानता है एकमात्र स्थिर वास्तविकता है जो चित्त है। ज्ञाता जो जानने वाला सुख और दुख जैसे द्वंद्वों के बीच एक तटस्थ स्थिति रखता है, उन्हें बैलेंस रखता है, स्थिर रहता है। कोई उन्हें बस जानता है। पाली शब्द चित्त का प्रयोग अक्सर जो जानता है उसके लिए संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। चित्त पूरी तरह से असीमित है क्योंकि वो सब कुछ समाहित करता है, सब कुछ समा लेता है। आप चित्त को जान सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। ये दोस्तों हम अच्छी तरह जानते हैं। हम जब ध्यान करते हैं और स्वाध्याय और संजय संगति के माध्यम से इन शब्द को अच्छी तरह हम जानते हैं और समझते हैं।
जिससे आप संपर्क कर सकें। आप जानने वाले सार को समझ नहीं सकते, क्योंकि ज्ञाता और जनता दोनों एक ही है। जानने वाला और जो जानता है दोनों एक ही है। चित्त को स्वयं को समझने के लिए उसे दो भागों में विभाजित होना होता है, और यह ऐसा नहीं कर सकता। एक स्तर पर सामान्य जीवन का चित्त है। यह चित्त नीचे की शांत गहराई के विपरीत समुद्र की सतह पर लहरों की गति जैसा है। समुद्र के लहरों की गति जैसा के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। सतही चित्त हमेशा किसी ऐसी चीज पर आधारित है जिसे हम मूल चित्त या आदिम चित्त के नाम से हम जानते हैं। यह समुद्र की गहराई और चौड़ाई की तरह विशाल और अथाह है। दोस्तों, इन शब्द को हम ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संजय संगति करते हैं, तो हम इस शब्द को अच्छी तरह परिचित हैं। और हम जब ध्यान करते हैं इस चीज को हम अच्छी तरह अनुभव भी करते हैं। तो ये कोई उन लोगों के लिए नई चीज है जो ध्यान नहीं करते, और जो ध्यान करते हैं और आध्यात्मिकता के पद पर चल रहे हैं तो इस शब्द से अच्छी तरह वाकिफ है। और जब ध्यान करते हैं तो इस शब्द की गहराई को अच्छी तरह हम अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, पत्री सर के बताए हुए जो ध्यान है, सांसों के साथ ध्यान हमें नियमित रूप से करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, संजय संगति करना चाहिए। और ये असामान्य ज्ञान पुस्तक से अंश लिए गए हैं। यह पुस्तक बहुत ही अद्भुत है, आप इसे जरूर पढ़ें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू।